حسن صاحب آپ نے وہ خبر پڑھی ہے؟ کون سی؟ میں نے تو بہت سی خبریں پڑھی ہیں. وہ جو اصلی خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ یورپ کے سائنسدانوں نے انسانی جسم کی جو ہڈیاں نا ہڈیاں وہ مصنوعی ہڈیاں بنائی ہیں. وہ اتنی اچھی ہیں کہ وہ جو اب کی اصلی ہڈیاں ان سے بھی بہتر ہیں. وہ خراب بھی نہیں ہوں گی، نہ وہ گھسیں گی، نہ وہ جوڑوں میں درد پیدا کر. بہترین. آپ کا پروگرام تو نہیں لگوانے کا؟ نہیں میری تو بھی ٹھیک ہے. نہیں آپ ان سے کم نہیں. انہوں نے تو اب بنائی ہے نا. آپ نے صدیوں سے ایسی ڈھیٹ ہڈی ایجاد کر رہے ہیں. جان سار عباسی صاحب نے جن کے بارے میں لکھا ہے سینکڑوں میں وہ ٹیکس دینے والے کھرب پتی، اور کھرب پتی بھی ڈالرز میں. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ تھوڑا سا وہ خبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ انہوں نے سکینرز لگا دیے ہیں. اب باڈی سرچ نہیں ہوا کرے گی، انٹیریئر باڈی کو ویسے ہی وہ دیکھ لیا کرے گی. یعنی آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت، پوری مداخلت. یہ بہت بڑی خبر ہے. اچھا نہیں، اس سے بھی بڑی خبر میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ وائرس جو ہے پورے ویسٹ میں پھیلے گا. ہر امپورٹنٹ عباسی صاحب ایئرپورٹ پہ وہ اس طرح کے سکینرز لگانے کا وہ فائنلائز کر چکے ہیں کہ جو بھی گزرے گا پورا قدرت کی حالت میں نظر آئے. وہ حمام ہے جس میں سب تلاشی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کون ہمارے معززین جو ایسے آتے جاتے ہیں وہاں، جن کے سارے دھندے، کاروبار، اولادیں، جائیدادیں سب کچھ وہاں ہیں، یہ کیسے آیا جائے کریں؟ دیکھیں ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے. چلیں وہ تو ایکس رے مشینز اور سکینرز کے سامنے ایک لمیٹڈ آڈینس کے سامنے وہاں پہ جو ہوگی ان کے سامنے ایکسپوز ہوں گے، اور وہ بھی فزیکلی دیکھیں وی نیڈ ٹو ایکسپوز دیم ان ریئل سینس. ایکسپوز ہوم؟ یہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یہ جو ہمیں رول کرتے رہے ہیں، جو بھی اس ملک کو رول کرتے رہے، رول نہیں بلکہ مس رول کرتے رہے ہمیں، جنہوں نے ہمیں آج اس نتیجے پر پہنچا دیا ہے کہ ہمیں اپنا مستقبل بلرڈ سا نظر آتا ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا کل کیسا ہوگا. اینڈ وی آر سو انسیکیور. یار میں دیکھیں میں وہ بتاؤں، وہ روٹی کپڑا مکان کے بارے میں شاید حبیب جالب صاحب نے لکھا تھا، روٹی کپڑا بھی دے، مکان بھی دے، اور مجھے جان کی امان بھی دے. روٹی کپڑا مکان تو دور کی بات ہے. میں بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ پاکستان، ایک رپورٹ ہے یو این کی، پاکستان ایتھوپیا سے بھی زیادہ غذائی قلت کا شکار ملک بن گیا. آپ اندازہ لگائیں، یہ 5 پانیوں کی سرزمین میں بیٹھے ہوئے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے دل لاہور میں بیٹھ کے 3,50,00,000 افراد مناسب خوراک سے محروم. 2007 اور 8 میں تعداد 28% بڑی ہے ایسے لوگوں کی. بڑھ گئی ہے نا. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں مس رول، یہ جو ہمارے رولرز ہیں نا، یہ پاورٹی اصل میں ختم کر رہے ہیں. آپ یقین کریں، یہ جو ہے نا لوگوں کو، یہ ان کی جو پاورٹی ایلیویشن کا لگتا ہے کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا اس حد تک لے جائیں کہ لوگ یا دہشت گردی سے مرنا شروع کر دیں یا یہ بھوک اور ننگ سے مر جائیں. نہیں میں آپ کو بتاؤں، میں نے چند دن پہلے ایک بڑے امپورٹنٹ پولیٹیشین کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ غریب عوام ہماری طاقت، اس لیے غریب کو غریب ہی رکھو، بالکل، تاکہ اس کا اگر وہ اسٹیٹس تبدیل ہو گیا تو شاید اس کی لائلٹی بھی تبدیل ہو جائے. بالکل. اس سے نجات کیا ہے؟ دیکھیں جو ایکچولی جو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہم عوام پہ آتی ہے، ایک تو ہمیں پریشر گروپس ڈیولپ کرنے چاہیے. میڈیا ایک پریشر گروپ ہے، عوام میں ہونے چاہیے. لیکن جو دوسری اہم بات ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو لوئرز ہے لوگوں کو پولیس کو مارنا شروع کر دیا. نہیں چلیں، ہاں نہیں غلط ہے. اور اس میں دیکھیں اب یہ تو نہیں کہ سارے ہی کرتے ہوں گے، ایک لمیٹڈ ہے، غلط ہے، اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اب دیکھیں جو ایک چیز ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ جو بدلنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں اور میں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا رہنا ہے. جو مرضی پیپلز پارٹی کرے، جو مرضی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کرے، ہم عوام کو، یا میں نواز شریف کا متوالا ہوں اور میں نے نواز شریف کا متوالا ہی رہنا ہے، جو مرضی نواز شریف کرے. دیکھیں ان چیزوں سے ہمیں تھوڑا سا الگ اپنے آپ کو کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے پھر اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ دیکھیں بینیفیشری عوام پھر ہوگی. ہمیں اس کا مطلب پھر وہ چلے جائیں منور حسن صاحب کی طرف، نہیں جس کی طرف بھی، خان صاحب کی طرف. دیکھیں ہمیں یہ ہے، یو تھنک there is any choice؟ دیکھیں کوئی نہ کوئی تھرڈ چوائس تو، ہاں جی، تھرڈ آپشنز. السلام علیکم. یہ بھی ہماری طرح ہر وقت اس چکر میں رہتا ہے کہ میرے خلاف کو سازش ہو رہی ہے. اپنا حال حلیہ نہیں دیکھنا، کام کچھ نہیں کرنا، سوچ بچار نہیں کرنی. السلام علیکم. ان کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا، بہت ٹی وی میں آتے ہیں، ویسے دیکھ لو اچھی طرح. وہ یہ ایک بات تو بتائیں، یہ کب سازشیں ختم ہوگی؟ یہ سب سازشیں کر رہے ہیں، یہ لگتا ہے ہمارے ساتھ ہی ختم ہوگی. یہ جو لگ رہا ہے ہو گئی اب، یہ ہمارے ساتھ ہی ختم ہوں گی. آپ کے ساتھ؟ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ختم ہوں گی. اس کا مطلب کہ ختم نہیں ہوں گی.
तो ये मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। बढ़ते क्यों नहीं जाएंगे, और क्या, मुसीबतें बढ़ने के लिए होती हैं। तो कौन निकालेगा हमें इसमें से? कोई तो होगा। अल्लाह ताला। वो अभी पूछते हैं अंसार अब्बासी साहब से, यही हम बात कर रहे थे। आप जरा चक्कर लगा के आए, फिर आपको बताएंगे कि अगर कोई मसले का हल हमें मिल गया। वो तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है वहाँ, वो पता करके हो कौन है। इधर भी हो रही है, उधर हो रही है, इधर भी, ये सब तरफ साजिशें ही हो रही हैं। मैं बच के निकल रहा हूँ, मेरा ना बताइएगा किसी को। ये इधर अभी आ रहे हैं परवेज रशीद साहब, जी जी, उनसे पूछते हैं कि ये किस्सा क्या है। वैसे ज्यादा बेहतर नहीं था कि ग्रेसफुली कह देते कि भी हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने कहा है कि मुल्क आपका ऐसे बहरानों से गुजर रहा है कि एक और नहीं इशू हो सकता इस बात का। पता नहीं। फिर देखें, अगर वो भी मोहसिन है, फिर अमेरिका भी हमारा मोहसिन है, फिर हमारे अगर ये सारे मोहसिन, अब इन सब मोहसिनों ने ही अगर ये मुल्क चलाना है तो फिर तो ये मुल्क नहीं चल सकता। हमें देखें, नहीं चला रहे हैं। हाँ नहीं, यही बात है। हाँ, देखिए यही तो गिला है हमारा, यही तो गिला है कि ये जो लोग बैठे हैं ये तो हमारे लोग ही नहीं है। ये वजीरिस्तान वाला मामला जो है ये कहीं रुकता नजर आता है आपको? देखिए इसमें आप लोग बैठे हैं। वजीरिस्तान इज जस्ट अ सिंबल, मैं उसको एक अलामत के तौर पे। सर वजीरिस्तान में देखें, जो अब फिर वही, चूंकि पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले एक आए थे और वो बात कर रहे थे, फिर वही बहुत से लोग कहेंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। 3 साइड से वजीरिस्तान को पाकिस्तान की फौज ने बिल्कुल एनसर्कल किया हुआ है। जो तीसरी साइड है अफगानिस्तान से, आग और पानी। जी जी अल्लाह का शुक्र, तशरीफ रखें जी। दोनों सोगवार लिबास। सो सर जो अफगानिस्तान वाली आप साइड तो है, इस्लामाबाद से आ रहे हैं ना? जी मैं इस्लामाबाद। अब जो अफगानिस्तान वाली साइड है जहाँ पे अमेरिकन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे उनकी चेक पोस्ट थी कोई काफ़ी सारी, उन्होंने वो तमाम चेक पोस्ट ख़त्म कर दिए हैं। हमने इधर से ऑपरेशन स्टार्ट किया, उधर से वो चेक पोस्ट ख़त्म कर दिए हैं ताकि जितनी भी मदद इन लोगों को जो मिलिट्री के अगेंस्ट वहाँ पे लड़ेंगे वजीरिस्तान में, उनको जो मैक्सिमम मिलिट्री और अदरवाइज जो भी हेल्प मिल सकती है वो मिले। और ये जाहिर है बहुत से लोग कहेंगे साजिश है, लेकिन दिस इज अ रियलिटी एंड ये चीज़ 2 दिन पहले ऑलरेडी अखबारों में छपी, न्यूज़ में छपी है, जंग में छपी है। ये नजरिया जरूरत से शुरू होने वाला मुआशरा जो NRO तक आया है, इसका वो ड्यू फोर्सी परवेज रशीद निसार साहब, NRO पे तो हमारी जमात का मौक़िफ़ जो है वो पहले दिन से वाज़ेह था जी। अभी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था उस वक़्त से हमने कहा था कि ये एक काला कानून है और एक इम्तियाजी कानून है। अच्छा, अब तो सजा याफ्ता कातिलों ने, सजाए मौत के कैदियों ने भी वो कर दी है, रिक्वेस्ट भेज दी है कि हमें भी NRO के तहत रिलीफ। ये बिल्कुल जी मंतकी बात है। ये तो फिर जायज़ है कि अगर NRO किसी एक शख्स के लिए हो सकता है या किसी एक ग्रोह के लिए हो सकता है तो फिर उसको सबके लिए होना चाहिए जी, या सबके लिए नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी अगर थ्रू करा लेती है असेंबली से, हम तो इसकी मुखालफत करेंगे जी। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली भी जब वोट करने का वक्त आएगा इसके खिलाफ वोट करेंगे, वो इसके हक में वोट नहीं देंगे। कभी नहीं करूंगा जी, मैं उसके हक में वोट करूंगा। आपके पास क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है जी कि जब COD साइन हुआ, हम तो महज इत्तेफाक है कि हम तीनों मुत्तफिक। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, उसमें COD साइन होने से पहले मियाँ साहब ने बीबी साहिबा से बाकायदा इस सिस्टम में माजरत की थी कि ये सियासी केसेस थे और मैं इस पे आपसे सॉरी करता हूँ। चौधरी शुजात ने कहा कि वो झूठे केसेस थे। जहाँ तक हमारी जात की हद तक ताल्लुक है NRO का, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि NRO हमारे पे फिट है, हमारा हक बनता है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमने जेल भी भुगती है और उन केसेस में भुगती है जो बिल्कुल झूठे केसेस हमारे खिलाफ बनाए गए। और 10 साल भुगती है, 10 साल भुगती है, एक रिकॉर्ड है जी, आप देखें ना। अच्छा, लेकिन आपके इस रिकॉर्ड के जवाब में अंसार अब्बासी साहब समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू से, कितनी एप्लीकेशंस हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो? एक तो मैं 2-3 जरा इनके फैक्ट्स, इनके मैं और ये हार्ड फैक्ट्स बता रहा हूँ। जरदारी साहब जब जेल में थे और जब हियरिंग डिलेज, ये कह रहे हैं 10 साल, 250 कम से कम मेडिकल सर्टिफिकेट्स दिए आसिफ जरदारी साहब की तरफ से मुख्तलिफ अदालतों को कि हमारे जो केसेस हैं इनको आगे नई तारीख दी जाए, नई तारीख दी जाए। अच्छा, नहीं उन दिनों में तो ये हाँ नहीं अच्छा एक और मैं उन सर इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात, मेरी याददाश्त थोड़ी सी अब उम्र के उस हिस्से में तो वो कॉलर भी पहनते थे, स्टिक भी पकड़ते थे, माशाल्लाह अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। और अब अच्छा दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये कहते हैं कि सारे के सारे जाली केसेस थे और इन्होंने इनसे माफी मांग ली, मियां नवाज शरीफ साहब ने इनसे माफी मांग ली। मुझे ये बताएं, 2 एग्जांपल्स बड़ी क्लियर हैं इस वक्त, बिल्कुल जो अभी मुझे याद हैं। ये जो स्विस अकाउंट्स थे
वो उन्होंने कभी रिफ्लेक्ट नहीं किए थे, वो कह रहे थे कि हमारे है ही नहीं कोई। वो तो अभी जो $60 मिलियन अभी 6 माह पहले जो इनके एडमिट हुए, इन्होंने एडमिट किया टीवी में आके $60 मिलियन। जी हाँ। और फिर दूसरा सर 80 से सरे पैलेस कितना बनता है? सर सरे पैलेस 80 का डॉलर है। सर सरे पैलेस वो कह रहे थे कि हमारा से ताल्लुक कोई नहीं। ऑन भी किया है इन्होंने, और फिर वो भी ऑन रिकॉर्ड है, फिर ऑन कर लिया एक देखें, स्टेज पे जी हाँ दे ओन्ड इट, ये हमारा ही है। ब्रिटेन में ऑन किया इन्होंने। आप मुझे ये बताएं, आज़ाद के साथ परवेज रशीद साहब से देखें, अभी इनकी जो पार्टी है इनका रोल है फ्रेंडली अपोजिशन का। एनआरओ के आपका मतलब है छुरियां निकाल के आ जाएं। एनआरओ के ऊपर अगर इन्होंने मुखालफत करनी है तो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि टूथ एंड नेल, हमें अपोज करेंगे इसको तो ऐसे तरीके से करेंगे कि इसको ताकि रुकावट पैदा हो। अब ये क्या बात है कि जब असेंबली में आएगा तो सारा कुछ होगा। सेनेट में ये रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं और पास करवा के उसको नलिफाई कर सकते हैं, ऑल टुगेदर नलिफाई कर सकते हैं। इट इज ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जवाब तो फिर वही देंगे ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि जहां तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र किया गया, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हमें ये बात याद है तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हमें बाकी बातें भी याद होनी चाहिए। वो तो तारिक साहब ने ना जी मैं मर्ज करता हूँ। अब्बासी साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया और तारक साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों पार्टियों ने ये तस्लीम किया था कि हम माजी में एक दूसरे की हुकूमतों को गिराने के लिए हमने जमहूरी रवैये भी इख्तियार किए और बाज़ दफ़ा जमहूरी रवैयों से बढ़कर दूसरी तरह के रवैये भी हमने इख्तियार किए जो गैर जमहूरी कह सकते हैं या जिन्हें आप कह सकते हैं कि जमहूरियत में ना हो तो अच्छे होते हैं। लिहाजा हम आइंदा के लिए दोनों जमातें अपनी माजी के तजर्बात से सीखती हैं और हमने अपनी गलतियों को तस्लीम किया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शर्म भी आने की बात नहीं है। जहां तक अब्बासी साहब ने कहा कि हम टूथ एंड नेल इसकी मुखालफत नहीं कर रहे, हम अगर टूथ एंड नेल मुखालफत नहीं कर रहे तो और कौन इसकी टूथ एंड नेल मुखालफत कर रहा है? हम ही ने इसकी मुखालफत की है। देखिए सेनेट में हमारे तो सिर्फ 7 वोट हैं। हम अपने 7 वोट हर उस धड़े के साथ इस्तेमाल करने को तैयार हैं जो इसका रास्ता रोकने की कोशिश करेगा। जो रेजोल्यूशन लेके आए, हमारे 7 वोटों से अगर वो रेजोल्यूशन कामयाब होती है तो मैं अब्बासी साहब को यकीन दिलाता हूं कि हमारे 7 वोट अभी से इनकी अमानत नहीं, इनिशिएटिव लेना चाहिए। देखिए मेरा ये क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनको इनिशिएटिव आपकी क्या मुराद है? इनिशिएटिव से मुराद 21 वोट तो डे वन से चीख रहे हैं सर। 7 कहते हैं हमारे वोट हैं, 21 वोट हैं पीएमएलक्यू के। एएनपी कहते हैं कि हमने वोट नहीं देना, जिस तरह जेयूआई ने कहा है कि हमने वोट नहीं देना। और जो लोग हैं, आप क्यों नहीं देखें अपना, जब कोई फर्ज करें आपको गवर्नमेंट बनानी हो फिर तो आप जाहिर है जाएंगे मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के साथ, तो यहाँ अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, मिलें, और ये तो मुल्क के साथ ज्यादती होगी। परवेज साहब, लोग अब ये बात कर रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी जो आपने चढ़ाई की थी वो तो ट्रायल के लिए, वो तो खत्म हो गया वो तो झांक की तरह मामला बैठ गया है। आज ही मियां साहब ने वहाड़ी में परवेज मुशर्रफ के बारे में गुफ्तगू की है। उसकी तमाम चार्जशीट जो मुशर्रफ पर वो लगाते थे, वो शिद्दत और हिद्दत नहीं है। उस सारी चार्जशीट को उन्होंने दोहराया, दोबारा रिपीट किया है। ठीक है। अब शिद्दत और हिद्दत तो जी आप कैसे उसको मेजर करते हैं? हमारे नजदीक हम अपने उस मौकफ पर कायम है, हमारे उस मौकफ में किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएं, एक मैं तारिक साहब आपसे बात पूछना चाहूंगा। जो अब्बासी साहब ने बात की है 250 मेडिकल सर्टिफिकेट्स, और ये नैब के रिकॉर्ड में, और माशाल्लाह चश्मे बदूर जवानियां माने और अच्छी उनकी सेहत हो, लेकिन उस कॉलर भी थे, स्टिक भी थी, 250 मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी थे और हॉस्पिटल में ही रहे। ठीक है, हॉस्पिटल में रहे। ये मुसलसल ये प्रोपेगेंडा 10 साल कोई फैसला नहीं हुआ। वो 10 साल कैसे मेरी गुजरे? मेरी अर्ज सुने। फरमाएं। शेर होता है ना जंगल में, कितनी उसमें फुर्ती होती है, कितनी चुस्ती होती है उसमें। उसको ला के अब जू में बंद कर दें, चिड़ियाघर में ला के बंद कर दें, उसमें वो फुर्ती नहीं रहती। एक वो शख्स जो अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा है, एक दिन में कितने सारे लोगों से वो मिलता है, आपको उठा के बेहिंड द बार धकेल दें, कितनी सोचें उसकी जो है ना मुहित हो जाएंगी। इंसान सोचता है, उसके साथ बेशुमार मसले मसाइल उसके साथ जो है ना चिपकते चले जाते हैं। वेरी स्मार्ट आंसर सर मैं देखे ना सर, मुझे मौका इसमें वजन कितना है वो देखे ना, वो अपनी बीवी से दूर है, अपने बच्चों से दूर है, कितने मसाइल हैं जो उसके गिर्द जो है ना वो जकड़े गए हैं। वो सोचते हैं कि यार मोहतरमा शहीद हो गई, बच्चे तो खैर उनकी मर्जी से अब उनसे दूर है। जी नहीं, बच्चे पढ़ाई के लिए दूर हैं, मर्जी का सर वैसे आप तो दूरी है ना सर। अब सुन लें। अच्छा, अब उसमें ये देखें, जुबान काट दी गई है,
गर्दन काट दी गई है। वो उस वक्त बीमार थे, अभी भी बीमार होते होंगे। सर वैसे मैं आपको मैं छोटी सी एक बात, सर आपने जो अब एक हल्का सा कमेंट करें, मैं असल मौजू की तरफ आना चाह रहा हूँ। मैं अच्छा आपने जो इनको बोला ना स्मार्ट, मेरा ख्याल है आपने इनकी ड्रेसिंग देख के तो स्मार्ट आंसर का है। अगर मेरी तरह शलवार कमीज आम से पहने होते ना तो आप इनको ये कहते हैं क्या बोंगी मारी है। आप शरारती हैं, वो उनका जवाब स्मार्ट, मैं अभी उस पे कायम हूँ। इट वाज हाउ लॉजिकल, हाउ कन्विंसिंग, that is different, but it was a very smart. शेर जंगल में हो तो उसका जाहिर है भाई बिहेवियर और होगा, सर्कस में आ जाएगा तो और होगा, हाईली अनकन्विंसिंग, चिड़िया घर में हो जाएगा तो और होगा। नहीं, मैंने तो कन्विंसिंग की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं देखो अंसार अब्बासी साहब को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इस हवाले से कि वो कहते हैं कि जो कुछ ये फाटा में या वजीरिस्तान में हो रहा है ये गलत है, हम कहते हैं ये ठीक है। मैं कह रहा हूँ पूरे मुल्क में जो हो रहा है गलत है। मेरी बात सुनो, पूरे मुल्क में जो हो रहा है गलत है। नहीं, उस मामले में तो मैं भी आपसे मुत्तफिक हूँ, परवेज रशीद साहब भी मुत्तफिक जो इंडिया से डॉलर, यहाँ तो वो माइनॉरिटी में है, $1 ले रहा है, एक शख्स जो इंडिया से डॉलर ले रहा है, और डॉलर वो लाखों में नहीं ले रहा, वो करोड़ों में ले रहा है, उसको आप किस तरह टेबल पे ला के मना लेंगे कि भाई आपने हमारे खिलाफ नहीं लड़ना? क्या करते हैं? अच्छा मुझे एक बात, वो तो जन्नत का टिकट रोज, जन्नत का तारिक साहब एक मिनट, बात ये है कि खुद तो बैठे हुए हैं महफूज जगहों में, प्रेसिडेंसी में, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, लंबी लंबी इनके साथ गाड़ियां चलती हैं, इनके भी जो लीडरशिप है उनको भी सिक्योरिटी जबरदस्त किस्म, आम लोगों को मरवाने के लिए छोड़ दिया है। भाई कोई खुदा का खौफ करें, आप इस किस्म की पॉलिसी क्यों परसू कर रहे हैं कि मर रहे हैं तो आम लोग मर रहे हैं। आप मैं इस देखिए स्कूलों के बच्चे अब मैं टोटल पूरे पाकिस्तान के स्कूल बंद करके रख दिया आपने। कर ली, लोगों को भी पता है किसको कितनी सिक्योरिटी है और लोग कितना किस कदर अदम एनआरओ पे जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हम डिबेट जो है थोड़ी सी उससे गलतफहमी पैदा होने का अंदेशा है। हम जब एनआरओ की मुखालफत करते हैं तो ये किसी पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक, कि किसी खास शख्स को फंसाने के लिए, ये एक असूल की बात जी एक असूल की बात है कि किसी शख्स को सजा दिलवाने के लिए गालबन हम एनआरओ की मुखालफत कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि कोई भी कानून ना किसी को फंसाने के लिए बनना चाहिए, ना किसी को बचाने के लिए बनना चाहिए। जब आप कानून ऐसे बनाएंगे जो किसी फर्द को फंसाने के लिए बनाए जाएंगे वो भी बुरे हैं। जब आप कोई ऐसा कानून बनाएंगे इंडिविजुअल बेस्ड ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, ये तो कानून को मजाक बना दिया ना, इंडिविजुअल बेस्ड कानून नहीं होना चाहिए। हमारी जो टॉप की लीडरशिप है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि आप खरपति लोग, आपकी लीडरशिप माशाल्लाह चश्मे बद्दू, वेरी रिच पीपल, वो टैक्स कितना देते हैं इस मुल्क को, उनकी जायदादें, उनके कारोबार मुल्क से, प्लीज मुझे लेट मी कंप्लीट प्लीज, बाहर क्यों है? क्या ये इस मुल्क के मुस्तकबिल पे अदम एतमाद का ऐलान नहीं है? अब थोड़ी सी बात अंसार साहब, उसके बाद बारी बारी। आपके हालात बहुत अच्छे हैं, ये जो गरीब लोग हैं उनसे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते हैं और फिर जिस तरह उसका खर्चा किया जाता है अय्याशियों में, अपनी सिक्योरिटी में और सब कुछ। देखें बात यह है कि पिछले दिनों मैंने पढ़ा कहीं कि मियाँ साहब ने जो अपनी अभी इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने जो अपने कागजात नामजदगी दी तो उसके साथ जो उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए, उससे मुझे अजीब सा लगा कि उसमें उनके जो बैंक अकाउंट था उसमें टोटल पैसा 5,000 कुछ रुपए थे। 3 पिछले सालों का 2005, 6, 7 उसमें उन्होंने निल टैक्स भी किया आपके सारे। अच्छा टैक्स उसमें उन्होंने कोई नहीं दिया। टोटल उनके एसेट्स की जो तादाद थी यानी जो वैल्यू थी, वैल्यू मालियत जो थी वो 1 करोड़ और कोई 84 लाख इस तरह राउंड अबाउट इतनी मालियत है उनकी। अच्छा बूटी लगा सकते हैं, हाँ, गॉट फैक्ट्स तो देयर इज नो हार्म। अच्छा पढ़ लें आप, बूटी लगाएं खैर है। अच्छा उसमें हाँ, अच्छा जरदारी साहब का जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा उसमें ये है कि 92 से 97 तक जो इन्होंने रिटर्न्स दी अपनी, जरदारी साहब ने भी और बीबी ने भी। जरदारी साहब ने टोटल आमदन इनिशियली 92-93 में बताई कि मेरी टोटल आमदन साल की थी कोई 1,20,25,000 रुपया। अच्छा उनके बाद के सालों में माफ कर दें। अच्छा उनके बाद के सालों में अब देखें 93-94 में साहब आप इसको भी डिफेंड करेंगे। मैं पेशगोई कर रहा हूं। मैं सही बोलूंगा जी। अच्छा 93-94 में जो उन्होंने टैक्स दिया सिर्फ 3,000 टैक्स दिया, 94-95 में 6,000 टैक्स दिया पूरे साल में, 95-96 में 8,000 टैक्स दिया, 96-97 में 9,100 टैक्स दिया। अब देखें इन और बीबी मरहुमा अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी की दोनों की जो एक्यूमुलेटेड टोटल मालियत थी 96-97 में, उनके पास टोटल जो जायदाद थी असासों की मालियत थी वो 3 करोड़ और कोई 8-10 लाख रुपए थी।
مجھے یہ بتائیں کہ از اٹ بلیویبل، اور مجھے بتائیں کہ جب ہمارے جو ہم لوگ مل کے ان کے لیے وہ چندہ نہ کریں. جو رول ماڈلز ہیں، دیکھیں جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے تو جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ فیل نہیں کر رہے کہ آپ بیوقوف آدمی ہیں؟ میں بیوقوف، ہم کیوں ٹیکس دیں؟ ہم کیوں ٹیکس دیتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اسی ٹیکس میں سے پھر کرپشن ہوتی ہے. میری مجبوری ہے اور مجھے تو اسی کٹ کٹا کے ملتا ہے. اب دیکھیں اسی ٹیکس میں سے کرپشن ہوتی ہے، اور وہ ایک پیسہ لے کے باقی جو قدم قدم پہ میں لوٹا جاتا ہوں وہ علیحدہ ہے، لیکن میری تو مجبوری ہے، میں تو کبھی بھی نہ دوں. اچھا ایک اور مزے کی بات دیکھیں، سوس پہ کٹتا ہے بھائی. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات دیکھیں. اب زیادہ تر کے جو ان کے یا ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، ان کے ایسیٹس جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب نے بھی اسپین میں بھجوا دیے اپنے ایسیٹ سارے، وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں زرداری صاحب بھی اللہ کرے بہتر ہو جائیں، اور میاں صاحب بھی اللہ کرے بہتر ہوں. ان کو پروو کرنا ہے اپنے ڈیڈ سے کہ ہم آپ کے لیڈرز ہیں، اپنے عمل سے. اور ہمارے ساتھ جینے مرنے کا جو وعدہ کرتے ہیں نا، وہ وعدہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر ہمارا کاروبار، میرا اور آپ کا کاروبار ڈوبتا ہے تو پھر ان کا بھی ڈوبنا چاہیے اس ملک میں. شوکت عزیز بریف کیس اٹھایا، غائب ہو گئے. ہمارے ابھی انٹیریئر منسٹر صاحب ماشاءاللہ بڑی زبردست سٹیٹمنٹس آتی ہیں، پڑھ کے مارتے ہیں. نہیں آپ سابق صدر کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ سابق پریزیڈنٹ، فارمر پریزیڈنٹ، دیکھیں سب پیسہ لے کے چلے گئے. انہوں نے اور چودھری صاحبان نے جو کیا کہ انہوں نے بعد میں یہ ریسنٹ ایئرز میں انہوں نے پیسہ باہر بھجوا دیا. عباسی صاحب عرض سنیں، اگر پھر ہمیں تاریخ بیان کرنی ہے تو ہمیں پورے تاریخ کو اس کے صحیح تناظر میں بیان کرنا چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اتفاق فاؤنڈری پر ایک ٹیڈی پیسے کا بینک کا قرض نہیں تھا. ایک شخص کی، ایک خاندان کی اپنی محنت کی کمائی تھی 40-45 سال سے، اور پاکستان بننے سے پہلے کی تھی، اور سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. کہ شریف فیملی میں سے کہ آپ اسے پولیٹیکل منی کہہ سکتے جی ہیں. پولیٹیکل کاروباری لوگ تھے. کوئی بندہ سیاست میں تھا ہی نہیں 1970 تک. ٹھیک ہے جی، 1970 میں اتفاق فاؤنڈری کو ایک ٹیڈی پیسہ دیے بغیر ضبط کر لیا گیا. یہ کہتے ہیں جی کاروبار لٹتے ہیں ہمارے. کیا شریف فیملی کا یہ کاروبار نہیں لٹا کہ ان کا واحد ایسٹ جو تھا اس کو نیشنلائز کر لیا گیا، جس پر بینک کا کوئی قرضہ نہیں تھا، جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن پرویز صاحب تو نہیں میری سب کے ساتھ ہوا. میری سب کے ساتھ نہیں ہوا جی، مخصوص خاندانوں کے ساتھ ہوا. لیکن سٹیل میں صرف اتفاق کے ساتھ ہوا. اور کون سی سٹیل مل لی گئی جی؟ بیکو بھی گئی. مجھے بتائیے. ایک بیکو گئی گئی اور ایک اتفاق گئی، دونوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آئے محترمہ کا زمانہ آیا، ہم پرانی باتیں یاد ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ کون سا جہاز تھا بدل میں نام میراتھن، بالکل جوناتھن جی، جوناتھن جہاز کو روکا گیا. 50-60 کروڑ روپے کا لاسز اس زمانے میں ہوئے. اس کے بعد کہا یہ گیا کہ جی اتفاق فاؤنڈری میں بجلی جو ہے وہ بغیر بل دیے استعمال کی جاتی ہے. ایک انکوائری ہوئی جی، اس انکوائری کے نتیجے میں جو رپورٹ آئی اس میں یہ کہا گیا کہ 6 کروڑ روپیہ واپڈا نے اتفاق فاؤنڈری کا دینا ہے. اتفاق فاؤنڈری نے کسی کا پیسہ نہیں دینا تھا. یہ جو فگرز ہیں اس میں مجھے بتائیں کہ صرف جو جاتی عمرہ ہے جی جی میں وہی اربوں میں ہوگا. یہ چند لاکھ روپے کے ایسٹس کی بات سمجھ میں نہیں آتا. آج جتنے ایسٹس ہیں اس کے حساب سے اتنا ٹیکس بنتا ہے. جی میں اس طرف آج کی سٹینڈنگ میں آج عرض کر نواز شریف یہ جی جوائنٹ فیملی کے ایسٹس ہیں. ڈکلریشن انہوں نے اپنا دینا تھا. ایسٹس جو ہیں ان کی جوائنٹ فیملی کے ہیں. جاتی عمرہ میں ان کی والدہ محترمہ بھی رہتی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی عباس بھی رہتے ہیں، ان کے داماد صفدر صاحب بھی وہیں پہ رہتے ہیں. وہ جوائنٹ ایسٹ ہے پوری فیملی کا. جو ایسٹس ڈکلیئر نواز شریف صاحب نے کیے ہیں، آیا ان کی سکروٹنی ہوگی نا جی. اگر اس میں کوئی چیز غلط ہوگی تو وہ پکڑی جائے گی. اگر مشرف اپنے 10 سال میں کوئی غلط چیز نہیں پکڑ سکا، اور اس سے پہلے بھی جو نواز شریف صاحب کا احتساب ہوتا رہا پوری فیملی کا کامنٹ ہم نے ان سے بھی ابھی زرداری صاحب کا بھی معاملہ. میرا چھوٹا سا ایک آبجیکشن یہ تھا کہ دیکھیں جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں نا، نواز شریف صاحب کا ایک امپریشن ہے، ٹھیک ہے میں چلے مان لیتا ہوں، میں اور آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ان کی جو مالیت ہے ٹوٹل 1 کروڑ اور 85 لاکھ کی، ہم مان لیتے ہیں کہ وہ میرے اور آپ جیسے ہیں. ان کا ایک امپریشن ہے کہ ہی از ون آف دا ریچسٹ پولیٹیشین ان پاکستان، ون آف دا ریچسٹ. There is no doubt. دیکھیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ جب میں اگر ان کی جگہ ہوں نا، اگر میرے ایسٹس کم بھی ہوں، میں ٹیکس کروڑ روپیہ ویسے دے دوں گا. چلے ایک منٹ، وہ بہت ہو گیا. آپ ایک منٹ، یہ زرداری صاحب کا ذرا ٹیکس اس طرح نہیں دیکھا جی. پورا پاکستان اس بات کو سن رہا ہے. ہم اس طرح غلط فہمیاں پھیلا کے جا سکتے ہیں، اس طرح غلط فہمی نہیں پھیلنی چاہیے. نواز شریف صاحب جب بزنس کر ہی نہیں رہی، جب ان کی انکم ہی نہیں ہو رہی تو انکم ٹیکس وہ کیسے دیں گے؟ دیکھیں نا، کمائے کچھ نہیں. جی میں عرض کرتا ہوں کہ جب ایک شخص جو ہے 2 سال وہ پہلے جیل میں رہا جی، اس کے بعد وہ جلا وطن ہو گیا. 2007 میں ایک آدمی پاکستان واپس آ رہا ہے،
पाकिस्तान में उसके सारे कारोबार सारे assets बैरून जो हैं, मुल्क कारोबार असासे या जायदाद बैरून वगैरह मुल्क उनका कोई कारोबार नहीं है जी, लेकिन उनके 2 बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान में रहना अच्छा था। एक मिनट टाइम आप जरा जरदारी साहब के टैक्स के बारे में आपका तो खैर एक सर मैं वो सारी हिस्ट्री आ गई मैं सियासी बात नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तानी बात करूंगा। ठीक। हाँ जी, मैं अर्ज कर दूं, देखें पहली बात तो मियां साहब मेरे बड़े सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। जहां तक ताल्लुक है ना, ये बात कहना कि जी वापडा के तरफ उनके 6 करोड़ रुपए निकला है, सर मैं वही अर्ज कर रहा हूं। मैं एक चीज क्लियर कर दूं जी, मैं उस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं, जो मुहिम चले FBR की तरफ से, और हमारे कुछ लोग उसमें शामिल हों, उसमें सहाफ़ी हजरात भी शामिल हों, वो बिला इम्तियाज ये रैकी करें कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी असल में है, बाहर कितनी है, अंदर कितनी है। वो हम शामिल हैं उसमें, नून शामिल है उसमें, दूसरी पार्टियां शामिल हो जाएं, तमाम अखबारात के जितने मालिक हैं वो शामिल हो जाएं, पाकिस्तान आर्मी के जनरल शामिल हो जाएं, रिटायर्ड भी और हाजिर भी, करें रैकी जनाब, लाएं टैक्स लें उनसे। की बात है, थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट की बात है। हम तो मेहनत करने वाले, मैं तो कहा करता हूं कि मजदूर जो है वो इतनी बड़ी ईंट लगाता है, हम इतनी छोटी छोटी हर्फ लिखते हैं, इससे तो पता नहीं 50 गुना ज्यादा मेरा टैक्स कटता है। एक मिनट, ये आपको अच्छा लगता है? कितना दे रहे हैं जरदारी साहब का? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं अर्ज करूंगा कितना 1,20,000 आमदन, पूरी आमदन, ये टैक्स नहीं है, ये साल की आमदन। अब तो बढ़ गया होगा ना, तो बताएं, प्रेसिडेंट जो वो टैक्स जो कटता है ना सैलरी में। हसन निसार साहब, मेरी एक गुजारिश है, मेरी गुजारिश है अपने इन भाइयों से, बिकॉज ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इसलिए कह रहा हूं। देखें, अगर आपने इस मुल्क में सियासत करनी है तो आपका एक पैसा मुल्क से बाहर नहीं होना चाहिए, एक पैसा। कभी इंडियन पॉलिटिशियन का सुना आपने? तो सरे महल का सर, ना आपका ना अपनी फैमिली का। अच्छा नहीं, एक मिनट साहब, आप मेरी बात नहीं, मेरी पहले एक मिनट कंप्लीट। अगर देखें, ना आपका ना आपकी फैमिली का, और दूसरा, अगर यहाँ आपकी एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, आपके मतलब फर्ज करें जिस तरह विक्टिमाइज होते रहे मियां साहब, बिल्कुल मैं मानता हूँ होते रहे होंगे, लेकिन देखें होते रहे नहीं, चले हुए हैं, चले विक्टिमाइज हुए हैं सर। अब मेरी सिर्फ उसमें ये है, इस मुल्क को वो माहौल किसने प्रोवाइड करना है कि लोग विक्टिमाइज ना हो और प्रोटेक्टेड फील करें लोग कारोबार में, कोई भी हो, बेशक अंसार अब्बासी हो, हसन निसार हो, या मियां नवाज शरीफ हो, या उनके बेटे हो। ये तो कोई बात नहीं ना कि आपके लोग एक और बात कर रहे हैं कि बाहर होना ही कुछ नहीं चाहिए, होना ही कुछ नहीं चाहिए। हसन साहब लीडरशिप, हसन साहब आपका नहीं होना चाहिए, सियासतदान होना चाहिए, नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सियासतदानों का नहीं होना। मुझे ये बताइए, आपको याद है कि अब्बास शरीफ साहब जो हैं, उनका एक बेटा था जिसका नाम यूसुफ था। 16 साल उस बच्चे की उम्र थी जब नवाज शरीफ साहब के साथ जबरदस्ती उसे मुल्क से जला वतन कर दिया गया। वो बच्चा एक दिन जहाज में बैठा और पाकिस्तान वापस आ गया कि उसका 10वीं का इम्तिहान था। बच्चे के दिल में सोची कि यार मैं कहीं इम्तिहान से रह जाऊंगा, मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। उसको भेज दिया गया? नहीं सर, भेज नहीं दिया गया, पहले उसे गिरफ्तार किया गया और उस बच्चे को 6 महीने कोट लखपत जेल में रखा गया। अब बासी साहब इसका जिक्र नहीं करते कि अगर आज हमारे बच्चे जो हैं, वो ज्यादती थी ना, जब हमारे बच्चे इस मुल्क से बाहर। अच्छा, हसन के साथ क्या हुआ? हसन ने अपनी तालीम मुकम्मल की, वो पाकिस्तान आके कारोबार करना चाहता था, पाकिस्तान में उसका दाखिला बंद हो गया। अब लेके आए भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान के लिए जान दी है, मोहतरमा ने इस पाकिस्तान के लिए जान दी है। अगर अब ये कहते हैं कि जानो माल इनका जो है ना, वो भुट्टो साहब ने क्या लेके, मुझे देखें, अब जो है हसन और हुसैन आपके भी, आसिफ अली जरदारी साहब के जितने बाहर एसेट हैं, भाई आप पाकिस्तान, हमें तो पैसों की जरूरत है ना इस मुल्क को। आपका पैसा, अगर ये मुल्क खुदा न ख्वास्ता ना हो तो आपके पैसे का क्या हैसियत होगी? मेरे और आप जैसे बकरे थोड़े हैं, से चलाएं काम। नहीं, मैं कहता हूं जी हम वापस ले आते हैं। हुजूर आप ऐसी तरकीब ना करें, ये देखेंगे नहीं, मैं तो अंसार अब्बासी साहब से अपना दोस्त नहीं, इंसार अब्बासी से कहते हैं कि हम अपने तमाम बच्चों से कहेंगे कि तुमने जो 10-10 साल जिंदगी के जबरदस्ती तुम्हें मुल्क से बाहर रखा गया और उस मजबूरी में ज़ाहिर है हम ये तो नहीं अपने बच्चों से कह सकते थे कि तुम वहां भीख मांगो। हम ना इस मुल्क को भीख मांगने पे लगाना चाहते हैं। मेरी बात नहीं, अब्बासी साहब मेरी बात मुकम्मल होने ना, हम अपने बच्चों को कभी ये तरबियत देते हैं कि वो अपने पैरों पर ना खड़े हों, ना हम अपने मुल्क को चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर ना खड़े हो। हम मुल्क भी चाहते हैं कि खुद इन्हिसारी पे हो, हमारे बच्चे भी खुद इन्हिसारी पे हो। हमारे बच्चों ने बाहर कारोबार किया, 10-10 साल जबरदस्ती मुल्क से बाहर रखा गया जिसमें उन्हें वो कारोबार करने पड़े। अब जो 10 साल का कारोबार है हम एक दिन में वापस ले आते हैं। आप हमें यकीन दिलाएं, मुशर्रफ को दें सजा, हमें यकीन हो, हमें इत्मीनान पैदा हो कि इस मुल्क में दोबारा इस तरह के वाकयात नहीं होंगे, हम ले आएंगे वापस।
नहीं जी, इजाजत है जी मुझे। थैंक यू जाना जी। बहुत हसन साहब बहुत अच्छा रहा जी। अच्छा जनाब, Okay, शुक्रिया sir. जनाब, खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज जी। लो जी बस Okay, बहुत sir. मेहरबानी जी, फिर इंशाल्लाह डिटेल में गुफ्तगू होगी Okay, आपसे जी, और बड़ी बहस करेंगे, टिक के बहस करेंगे आपसे इन पॉइंट्स पे इंशाल्लाह जी। थैंक यू जी। हाँ जी, इंसार भाई साहब आपको आज मिलवाते हैं हुमैरा अरशद है हमारी एक लीडिंग सिंगर। पिछले दिनों इनका फड्डा भी पड़ा था, हाँ जी हाँ, वो चीफ मिनिस्टर के वो मसला शिकायत, हल करना था, वो कोई मसला जो लेके मसला गई, खुद बन गया। तो वो जिन्होंने मसला हल करना था वो आपस में कह रहे थे ये मसला मेरा, ये मैं नहीं हल करना है। ये देखो ना जी, वो मुजाहिर है वो सेलिब्रिटी देख के वो बेचारे। रास्ता ढूंढ रही थी। वालेकुम सलाम, तो ये कैसी मुझे है इधर हुमैरा? ले आए। खैरियत? ठीक ठाक। बैठो इधर आ जाओ। ये कि आज को काले का दौरा पड़ा हुआ है, उन्होंने काला सूट पहना हुआ था तारिक ने, परवेज रशीद साहब ने भी काला, उन्होंने भी कहा मेरा भी काला पहन के आया। लेडीज के लिए तो आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेडीज को तो अक्सर ये चीज पसंद होती है। ये क्वेश्चन मेरे बंदों से पूछना चाहिए। अच्छा आप बताओ कि आपने करियर कब शुरू किया और कैसे किया? मैंने आज से कोई 13 साल पहले अपने करियर का आगाज किया था, और मैं तब स्कूल में पढ़ती थी और एक प्रोग्राम हुआ करता था म्यूजिक चैलेंज। उसमें मैंने अपने स्कूल की तरफ से, जैसे जाते हैं बच्चे, तो ऐसे कंपटीशन किया, वो विन कर लिया। तो वहाँ बस क्या गाया था? लपे आती है अब उनके तमन्ना मेरी है। नहीं, मैंने मैडम के गाने गाए थे। आपका अपना जो गाया हुआ को गीत सबसे ज्यादा फेवरेट वो कौन सा है? मुझे सबसे अच्छा लगता है वसवेड़ होला तू अखियां दे कोल को। आपकी शोहरत का आगाज हुआ था मैडम नूर जहां के गीत से, सदा हूँ अपने, प्यार की, हाँ जी। अगला मिसरा क्या है इसका? जहां से बेनियाज हूँ, जहाँ से बेनियाज हूँ, किसी पे जो ना खुल सके वो जिंदगी का का राज हूँ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। अब ये वाला जरा ना जिससे आपकी शोहरत का आगाज हुआ था वो थोड़ा गुनगुनाएंगे? ये बाय द वे मेरे फेवरेट गीतों में से एक है। हाँ। सदा हूँ अपने प्यार की, सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से मैंने आंसू किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ। सदा हूँ अपने प्यार की, रचे हैं मेरे ज़मज़मे, रचे हैं मेरे ज़मज़मे, हवाओं में घटाओं में मेरे गले का नूर है घुला हुआ फ़ज़ाओं में। हूँ तो चांदनी हूँ मैं, छिड़ूं तो एक सांस हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ। सदा हूँ अपने प्यार की, थैंक यू वेरी मच। मैं ये दिस इज वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो सीधा टाइम मशीन में बंदा बैठ के अपने बचपन में चला जाता है। ये स्कूल डेज के, आपको पता है इसका शायर कौन था इस गीत का? मुझे ये कितने दुख की बात है। वैसे शायरों के साथ बड़ा जुल्म है, या सैफ साहब थे या कतील शिफाई साहब, वन ऑफ दीज टू। इसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन था? रशीद अत्रे रशीद साहब। अत्रे साहब। हाँ,
इसी फिल्म का कोई और बड़े खूबसूरत गीत थे इसके। आप बताएं, हो सकता है मुझे आते हो। हसन साहब मेरा ख्याल है इनसे अपना की एक चीज सुने जो इनकी। हाँ, वो जो आपने बताया आपका अपना फेवरेट वो ढोला वाला। अच्छा, वो भी सुनाते हैं। वो भी इतने वो आपकी गुफ्तगू से थोड़ा सा डर सा लग रहा है कि पता नहीं क्या बात कह देंगे आप। नहीं, सच में मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या बात हो जाएगी, क्या आप कह देंगे। बिल्कुल नहीं, हम आपको एडमायर करते हैं। आपको शायर याद है? नहीं, शायर नहीं याद। अच्छा, ये कितने दुख की बात है। मेरा ख्याल है कि वो है, वो है। पता तो आपको भी नहीं सही तो नहीं, तो मुझे ना याद हो तो दुख की बात है, आपको याद ना हो तो ये भी कोई दुख बात की नहीं। बात है। नहीं, ये भी दुख की बात। बहरहाल आप वो ढोला वाला। बस ढोला हो, बस वे ढोला तू अखियां दे खोल खोल, बस वे ढोला तू अखियां दे खोल। लो सामने वेरा सामने चन्ना वे मुंह बोल पावे ना बोल, बस वे ढोला तू अखियां दे खोल खोल। वगदी रावी विच सुटा में गनेरिया वे, वगदी रावी विच सुटा में